नितिन ने फ़ोन करना लाइव आ रहा कुछ ही देर में हम अपना सेशन स्टार्ट करने जाएंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई ऑडियंस so that viewers and my audience can. Yeah, after we just waiting for next 2 minutes and then we start. Okay. Muzammil, can you just confirm the आवाज clear आ रही? क्या करना नहीं चाहिए ना? Yes, Komal, you are audible. So I think we're ready to start. I would just like to line with everyone. Thank you for joining on time. We are expecting more people to join in with time, but make sure the recording funds should also. So let's start. I would like to give a very brief introduction. We have Salima Appa with us for today's session. Just a brief introduction of Salima. Is a trained head advocate. She is working as a dental surgeon, and she has been working with a lot of institutions here in Karachi and in Lahore also. She was chairperson for AKIP Garden last tenure, and then she was also chairperson at Consent Board for Lahore. So professionally and business-wise, Salima Appa has always been with us whenever we contacted. What we come last session is हम दोबारा इनको approach करेंगे. So thank you so much Salima Appa for your time from your busy schedule. Before moving forward towards our session, Salima Appa will be introducing the topic in detail. Before moving forward with our session for today, I would like to give 2 minutes to Muzammil so that he can collectively summarize our youth interaction journey so far. Today is our 10th session, by the way. Thank you, Komal, and thank you, participants.
Yes. Thank you. And जैसे कि कोमल is saying that it's last session. Yes, it is last session for this season. But inshallah, we are not going anywhere, and we will be coming back with season 2. But thank you so much, guys, for your support and participation. We have completed, alhamdulillah, 10th session in this season from April till July, and lots of speakers. Different topics and different platforms, so many interactions. It's a family for us right now, 4 months together, and we are very much pleased and happy. And जो हमारा एक मिशन था इसको स्टार्ट करने का, we are very much near to this, and inshallah with the gap of 1 or 2 weeks, inshallah we'll be coming back for season 2. Milestone 2 as well. So yes, youth interaction की एक जर्नी के बारे में आप लोग से डिस्कस करना था, और इसी तरीके की पार्टिसिपेशन और सपोर्ट हम फ्यूचर में भी आपसे चाहेंगे. So thank you so much, Komal, for giving me time, and over to Salima. Hello everyone, good evening. Shall I start? Yeah. Okay. So good evening everyone. As you all know, thank you Komal for the brief introduction, and as you all know that I've been here to give away a very important session on stress management, and I believe that I'm very much thankful first of all to the Aga Khan Youth and Sports Roof Garden for honoring me and inviting me for this milestone session. But before starting, I must tell you that I have a very profound and very old connection with YSB, and it will remain that connection, for the rest of my life. And before starting my session, I must tell you all that today's session is very important and very crucial to all of us. चलते फिरते हम हर कोई जो है वो स्ट्रेस के लिए जो है वो लिंक्ड होते हैं अपनी हर वर्क प्लेस पे और बहुत सारी चीज़ों पे. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर टेलिंग यू ऑल, आई वांट टू नो द नॉलेज यू गाइज कैरिंग विथ यू. सो वी विल हैव अ वेरी स्मॉल पोलिंग, and there are only 10 questions which are very quick questions. You will get 40 seconds for that each question. I would like you to fill that question, and I will actually get to know that how you guys are connected with stress in your life. So Asif bhai, can we start the polling of the audience please? So now you can all view the questions. I can always read them, and I can explain you in both the languages so that हमारी दोनों audience जो साथ साथ सुनती रहें. Okay, so you all can view the questions. First is, mental illnesses are brought on by a weakness of a character. क्या किरदार की कमज़ोरी की वजह से जो है वो आपको लगता है कि आपकी जहनी दबाव जो है वो उसमें बीमारियां जो है वो पैदा होती हैं? ये मिथ है या फैक्ट है? आपका स्कोर जो होगा वो हमें बताएगा कि आप लोग कितना समझते हैं इस बारे में. मैं साथ साथ दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी. Children do not experience mental illnesses. Their actions are just products of bad parenting. क्या बच्चों में ये जहनी दबाव की कोई बीमारी नहीं होती? क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो माँ बाप हैं उनकी परवरिश गलत होने की वजह से पैदा होती है? ये क्या मिथ है या फैक्ट है? Then stressful people keep their plans with themselves. क्या जहनी दबाव में जो लोग होते हैं वो अपने प्लान्स अपने पास ही रखते हैं, आगे किसी से शेयर नहीं करते? I'm like looking over the polling and I'm like enjoying it. It's going really well. So the next question is, depression is a part of a normal aging process. क्या हमारी जिस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है इस तरह के डिप्रेशन का भी एक अमल चलता रहता है, ज़िंदगी के साथ साथ उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है? Then we have another question. People can't work if they have a mental health problem. क्या लोग काम वो नहीं कर सकते अगर जिनको जहनी मसला है? Then mental illnesses is the same as mental retardation. क्या जहनी दबाव में जो लोग होते हैं वो जहनी बीमारियां या ख़त्म हो जाना जहन का, उससे कोई लिंक है उसका? बिल्कुल सेम है उसकी तरह. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जहनी दबाव के मसले बहुत ही कम हैं. Then we'll move to 8th question.
पीपल विथ मेंटल इलनेसेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर वायलेंट. क्या जो जहनी दबाव में लोग होते हैं वो बहुत झगड़ा और बहुत लड़ाई और उसमें ज़्यादा मुलविस होते हैं? पीपल कैन रिकवर कम्प्लीटली फ्रॉम अ मेंटल इलनेस. अगर कोई भी इंसान मेंटल इलनेस में है तो क्या वो पूरी तरह ठीक हो सकता है? साथ साथ आपको बताना है कि ये मिथ है या फैक्ट है. और लास्ट क्वेश्चन, ऑन एवरेज पीपल विद सिवियर मेंटल इलनेसेस डाई 10 years यंगर. जो लोग जहनी दबाव में होते हैं क्या वो 10 साल पहले वफात कर जाते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी? सो आई थिंक many of you have already voted. I'm looking forward just 2 minutes more and then we'll stop the polling from the audience. आपके इस वोट से हमें बहुत कुछ पता लगेगा स्टैटिस्टिक्स. ठीक, तो हम अपना पहला सवाल शेयर करते हैं. पहला सवाल था मेंटल इलनेसेस आर ब्रॉट बाय द वीकनेस ऑफ अ कैरेक्टर. आप सबको ये क्या लगता है कि क्या ये सच है कि किरदार की कमजोरी की वजह से होता है? तो आप में से 58% लोगों ने बताया ये कि मिथ है और 42% लोगों ने कहा ये फैक्ट है. जबकि ये एक फैक्ट है कि ये किरदार की कमजोरी की वजह से होता है. जिस तरह हम सेशन शुरू करेंगे विल गेट टू नो कि किस तरह से हमारी ये कैरेक्टर की एक वीकनेस की वजह से हम ये डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं और किस तरह से ये अमल चलता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन डू नॉट एक्सपीरियंस मेंटल इलनेसेस, देयर एक्शंस आर जस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ बैड पेरेंटिंग. सो दिस इज लाइक मिथ में 71% लोगों ने कहा है कि यस इट्स अ मिथ. ये जो है वो बच्चों में मेंटल इलनेसेस जो है वो ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स अगर गलत जो है उनकी परवरिश है तो उसकी वजह से जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं. और फैक्ट है 29% ने बोला दैट इट्स अ मिथ. ठीक है ना, इट्स अ मिथ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रेसफुल पीपल कीप देयर प्लान्स विद देमसेल्व्स. क्या जहनी दबाव में या स्ट्रेस में जो लोग होते हैं वो अपने प्लान्स अपने साथ ही रखते हैं? 38% लोगों ने कहा है कि ये फैक्ट है और 62 लोगों ने कहा है कि ये जो है वो फैक्ट है. मिथ जो है 38% है. तो अगर हम देखते हैं तो स्ट्रेसफुल पीपल का जो प्लान है वो अपने तक रखने के लिए रखते हैं, ये फैक्ट है. स्ट्रेसफुल पीपल ये हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपने तक ही सब कुछ रखें और इसी वजह से वो एक डिप्रेशन का शिकार आगे जाकर हो जाते हैं और एंजाइटी में आ जाते हैं. डिप्रेशन इज द पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल एजिंग प्रोसेस. 48% लोगों ने कहा है कि येस इट्स अ मिथ एंड फैक्ट 52% लोगों ने कहा है. मैं बताते चलूँ कि इट्स अ मिथ. इट्स नॉट पार्ट ऑफ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस बट येस इवेंचुअली इफ यू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस देन इवेंचुअली इट विल क्रिएट अ डिप्रेशन. देन वी हैव पीपल कांट वर्क इफ दे हैव अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. क्या वो लोग काम नहीं कर सकते जब उनके कोई भी जहनी दबाव का मसला होगा? मिथ है 52% एंड फैक्ट है 48%. लेकिन मैं सच बताऊं कि इट्स अ फैक्ट. दे कांट वर्क if they have a lot of mental illnesses or pressure. Then we have mental illnesses is the same as mental retardation. 62 yes कह रहे हैं, myth कह रहे हैं, 36 कह रहे हैं myth. तो मुझे लगता है कि ये तो आप खुद भी बता सकते हैं. जब मेरा सेशन खत्म होगा तो आपको भी पता लग जाएगा कि मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस का कोई लिंक नहीं है. मेंटल रिटार्डेशन एक तरह से कोई सिंड्रोम में कोई डिजीज के उससे कंसर्न होता है और मेंटल इलनेस हमेशा से आपके खुद के जो है वीकनेस होने की वजह से या आपके खुद के प्रेशर्स की वजह से जो है हो रहा होता है. ठीक है. देन वी हैव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रेयर. मिथ का है लोगों ने 82%. अभी तक लोग एक समझते हैं कि मिथ है. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर नॉट रेयर, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट. सो फैक्ट में लोगों ने सिर्फ 18% का है. लेकिन ये एक रेयर बीमारी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगी है, हर एक बंदे को नेक्स्ट है. देन पीपल विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर वायलेंट. लोगों ने कहा है फैक्ट में 59 और मिथ में कहा है 41 है. लोगों को लगता है कि नहीं वायलेंट होते और होते हैं को कहा है 59%. इसका मतलब है कि ये भी हमारा सवाल जो है थोड़ा सा अभी लोगों को क्लियर नहीं है. आई होप कि हमारे सेशन के बाद ये सवाल होंगे वो पोस्ट उसमें आपके ठीक हो जाएंगे.
तो येस, people with mental health are not violent. Trust me, not everyone is violent, but eventually उनकी conditions, उनकी situations, उनकी consequences जो हम अभी पढ़ेंगे भी, circumstances जो होते हैं उसकी वजह से वो जो है वो हो जाते हैं violent. And then second last question, people can recover completely from a mental illness. 18% लोगों ने कहा कि it's a myth और 82% लोगों ने कहा fact. Yes, this is something which is right. People can recover from mental illnesses. And last, on average, people with severe mental illness die 10 years younger. So इसमें 57 लोगों ने कहा कि yes और 43 लोगों ने कहा no. तो मैं ये कहूँ कि अगर mental illness का कोई होगा मरीज, तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी मर जाएगा क्योंकि उसको कोमोर्बिडिटीज बहुत होंगी. तो हम यहाँ पे अपनी पोलिंग एंड करते हैं. आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने जो है वो आज के जो इस पोलिंग में स्टार्ट में जो रिफ्रेशर था उसमें पार्टिसिपेट किया. एंड एज आई सेड कि हम अपने अब सेशन को स्टार्ट करेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, आज मैंने आप लोग सबसे जो है वो शुरू में एक गो थ्रू कर गई, मैं आप लोग का जान गई कि किस तरह से आप लोग जानते हैं इन सब चीज़ों को. मैं चाहूँगी कि अब जो है मैं बात बताऊँ कि किस तरह से मैं अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ. सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस के ऊपर बात करते हैं तो स्ट्रेस हमेशा से एसोसिएटेड होता है आपके इमोशंस के साथ. और जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशंस हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई या किसी से कोई लड़ाई हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी रिसेंटली एक्सीडेंट या वगैरह की वजह से जो है आपको लाइफ में पेश आई, तो उस सिचुएशन में जो है वो आप अपने इमोशंस को जो है वो सामने एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, वो एक्सपीरियंस के थ्रू आपके सामने दिख रहा होता है. अगर तो आपके वो इमोशंस हैं और वो एक्सेसिव हो जाते हैं और आप बाद में उसको बहुत सोचते हैं और बहुत उस पर प्रेशर लेते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस को हमेशा से एक वर्ड से मुंसलिक करते हैं जो कि प्रेशर. तो अगर हम कहते हैं कि मैं बहुत प्रेशर ले रहा हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उस बारे में, तो वो एक स्ट्रेस की शक्ल ले लेती है. तो यानी हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस और वो जो है स्ट्रेस की तरफ माइल हो जाते हैं. और जब हम स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं कह दूं कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा उसको अपने दिमाग में लेकर चल रहे होते हैं, तो वो एक डिप्रेशन की शक्ल ले लेता है. तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेस जो है वो एक लॉन्ग रेस में डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है. तो मैं जहाँ जहाँ बात करूँगी आपके साथ स्ट्रेस की, वहाँ बात करूँगी डिप्रेशन की भी और वहाँ बात करूँगी रेजिलियंस की भी. हम इसके ऊपर एक एक करके चलेंगे ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से ये सब लिंक्ड है. अब मैंने जैसे बात की आपसे, अगर हम अपने पाकिस्तान का जायजा लें तो हमें पता लगेगा कि 10% हमारी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है स्पेसिफिकली वो सफ़र करती है आपकी मेंटल कंडीशन से. यानी कि मैं कह दूं 20 मिलियन पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय मेंटल इलनेस. सो आई थिंक दैट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ फैक्ट कि हमारी पब्लिक जो है वो कितनी ज़्यादा अफेक्टेड है. और अगर हम बाहर की कंट्रीज़ में जाएंगे तो और मज़ीद वहाँ पे ज़्यादा है. इसका रीज़न ये भी है कि हम पाकिस्तानी कल्चर में रहते हैं. वी हैव अ जॉइंट फैमिली, वी हैव पीपल सराउंडेड बाय अस, वी आर सो मच इन्वॉल्व विद आवर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स दैट वी आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन प्रॉब्ली. But eventually people outside our country are usually more affected. When I was looking over the America's statistics, and that was quite larger than the Pakistan statistics. Of course, they have a huge state and they have a huge culture. They have been taking together. But the thing is, the stress has taken away the entire wave of our culture and also to our lives. अगर आप workplace पर हैं, अगर आप study कर रहे हैं, अगर आप कोई team में हैं, आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिव इमोशंस लेकर आएंगे तो वो स्ट्रेस बन जाएगा. अब मैं स्ट्रेस के बारे में कहूँगी, मैं हमेशा अपने सेशंस में कहती हूँ, मैंने बहुत सालों पहले एक सेशन किया था तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के साथ और उनमें मैंने यही बताया था कि स्ट्रेस एक बेहतरीन चीज़ है. तो सामने वाले ने सवाल किया कि कैसे बेहतरीन है, तो मैंने उससे यही कहा कि जब स्ट्रेस आप लेते हैं ना तो आपको ये पता होता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे. यानी कि आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं स्ट्रेस में ये काम कंप्लीट कर लूँगा विद इन टाइम लाइन, मुझे ये प्रेशर नहीं होगा क्योंकि मुझे काम करना है, तो मेरे पास स्ट्रेस होगा तो मैं उसको सोचते हुए वो काम कर लूँगा. लेकिन अगर वो आपका स्ट्रेस बहुत ओवर एक्सेसिव हो जाए या आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में माइल कर रहा है, यानी कि आपको हेल्थ इश्यूज़ में ला रहा है या आपकी स्लीप डिप्रिवेशंस कर रहा है या आपको नींद पूरी नहीं दे रहा है या जो भी आप खाने पर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो वो एक गलत शक्ल ले लेगा. तो यानी कि स्ट्रेस जब तक अच्छा है जब तक आपको वो एक कोई गोल को अचीव करने के लिए है आपके साथ, ठीक है, और वो रिजॉल्व हो गया है, अब आपका काम हो चुका है. लेकिन अगर तो वो मसला आपका हल नहीं हुआ है और वो आप इसको लेके आगे तक जाएंगे तो वो एक डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है.
So it can be beneficial and it motivates you to reach your goal, but definitely you need to see it doesn't get the detrimental effects on your health as well. जो मैंने बात की कोमोबिडिटीज ना हो जाए, इसके साथ कोई और आपके साथ मसला ना हो जाए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि स्ट्रेस आपको हो भी रहा है कि नहीं। यूजुअली हर किसी को होता है और कभी कभार तो वो चला भी जाता है, वो अगर बहुत ज़्यादा ना सोचे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्ट्रेस जो है वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है और ऐसा लगता है आपको कि आप बर्नआउट फील कर रहे हैं, तो आप वो टाइम से अपने आप को ठीक कर लें तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे और आप सोचेंगे कि ठीक है ये तो यूजुअली होता है, मैं नेगेटिव थॉट्स में रहता हूँ, ये रहती हूँ और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तब जो है आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिफ्रेंशिएट करें स्ट्रेस और डिप्रेशन में। अब एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्ट्रेस की वार्निंग साइंस क्या होंगी। आपको सबको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को देख रहे हैं स्ट्रेस, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस का पेशेंट ये डिप्रेशन का पेशेंट, दोनों में बहुत फ़र्क है। स्ट्रेस के पेशेंट में ये होगा कि वो ज़्यादातर वार्निंग साइंस ये देगा आपको कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेगा और उसका जो भी टास्क उसको देंगे वो कंप्लीट नहीं कर सकेगा, यानी कि वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकेगा। ठीक है, फिर ये हो रहा होगा कि उसको बहुत ज़्यादा सोने में तकलीफ हो रही होगी, यानी कि वो या तो बहुत ज़्यादा जागता रहता होगा पूरा वक्त या वो सो नहीं सक रहा होगा। ठीक है, प्रॉब्लम उसको बहुत स्लीप डिप्रिवेशन है, या तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल होगा, कोई भी बात होगी उस पर बहुत ज़्यादा, यानी अक्सर ऐसा भी होता है अपनी लाइफ में कि आपको कोई छोटी बात भी कह दे तो आपको फील होता है। ठीक है, तो रादर देन स्पीकिंग अप आप उसको एब्जॉर्ब करके किसी उस बंदे को बताएं जो आपका एक कंफर्ट जोन है और आपको पता है कि मैं उसको सुनाऊंगा तो वेंट आउट हो जाऊंगा। मैं अपने 12 सेशंस में कहती हूँ हमेशा से, आई हैव बीन टेलिंग दिस सेम थिंग in my suicide prevention session as well, that when you get time, talk, let's talk, you know, it's a good therapy, and when you talk you eventually went out yourself, आप अपने आप को एक रिलीफ कर जाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे की तरफ दे देते हैं, उसको सबमिट कर देते हैं और उसको बता देते हैं कि अब तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम मुझे सोल्यूशन बताओ। और इसके लिए थेरेपिस्ट होने का ज़रूरत नहीं है आपको कि आप थेरेपिस्ट होंगे तो आप कर सकते हैं, नहीं। आपकी स्पीकिंग पावर, आपका रिलीविंग फैक्टर ही सामने वाले को रिलीव दे सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल कि आप किस तरह से जो है वो सामने वाले को कंफर्ट करते हैं, उसको ज़्यादा आप जो है वो प्रेशर्स में ना लाएं, बनस्बत उसके आप उसको जो है वो उस तरह से बात करें कि वो खुद भी थोड़ा टेंशन रिलीव कर जाए। और क्या वार्निंग साइंस होंगी हमारे स्ट्रेस के पेशेंट में? इवेंचुअली इन पेशेंट्स में देखा गया कि वो मेमोरी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं और भूल जाते हैं चीज़ों को रख के, या कोई काम करने का दिया वो टास्क तो वो भूल जाते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में होते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर इलेबोरेशन भी करेंगे, लेकिन एक पहले वार्निंग साइंस आपको पता लग जाए ताकि आपको पता लगे कि कहाँ वो पेशेंट खराब है अब। ठीक है, इसके अलावा आपके एपेटाइट में प्रॉब्लम्स होंगी। एज आई सेड दैट पेशेंट विल एक्चुअली हैव एन एपेटाइट प्रॉब्लम, चेंज इन ईटिंग हैबिट्स भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल रात के 4 बजे, सुबह 4 बजे 4 AM पे ही विल हैव हिज मील। ठीक है, रादर देन हैविंग एट प्रॉपर टाइम। ठीक है, स्केड्यूल्स रूटीन सेम नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी रूटीन्स में। उन सूरत हाल में जो है ना, उन पेशेंट्स पे बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है और ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या वो जो प्रॉपर फूड है, फॉर एग्जांपल द हेल्दी फूड वो खा रहे हैं कि कुछ और ट्रांस फैट्स खा रहे हैं, या कोई अल्कोहल्स ले रहे हैं, या कोई कॉफ़ी या चाय ले रहे हैं। ये हमें बहुत देखने की ज़रूरत है कि वो क्या प्रॉपर फूड ले रहे हैं। देन द वार्निंग साइन, the patient with stress would be someone who is having trouble in functioning at work. वो या तो बहुत थकावा रहता होगा, या नींद में रहता होगा, या कंसंट्रेशन नहीं होता होगा उसका प्रॉपरली अपने काम पे, या फिर वो बहुत गुस्से में रहता होगा, या इरिटेबल होगा बहुत ज़्यादा। ये बहुत कॉमन साइन है, एंग्री एंड इरिटेबल। अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए वो फिर इस तरह से एंग्री या इरिटेबल हो जाता है। ठीक है, वो ये सोचता है कि अगर तो मेरे इर्द गिर्द में मैं ये कर नहीं सक रहा तो मैं कमज़ोर हूँ, तो इसलिए मैं अपनी कमज़ोरी को ना दिखाऊँ और मैं उसको ओवरशैडो करूँ विथ माई एंगर एंड इरिटेबिलिटी। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वो फर्स्ट साइन होती है कि लॉट ऑफ प्रेशर कमिंग अप एंड यू रिस्पॉन्डिंग विद एंग्री एंड इरिटेबल नेचर. So that is also a point where you have to focus on that. Then we have a patient will eventually get sick. आप देखेंगे कि उस स्ट्रेस का बंदा जो आपके पास आएगा, या जो है आपके साथ दोस्त है, या जो भी है आपके घर में, वो बहुत ज़्यादा बीमार भी हो रहा होगा. ठीक है, उससे बहुत सर दर्द भी हो रहा होगा, उससे बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स भी हो रहे होंगे, यानी he or she will be surrounded by a lot of problems. So these will be the warning signs. Now let's discuss a difference between stress and depression. I have been getting a lot of queries on these
two terms, and I would like to share it in my session. मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहा था कि I will be sharing this in my live session, so it's the right time to talk about it. स्ट्रेस एक मेंटल कंडीशन नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, बट इट हैज़ ट्रिगर्स, ठीक है. और ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? मे बी समथिंग विच मूव्स यू लाइक डाइवोर्स, और मे बी और सम इलनेस और समथिंग, और ब्रेकअप और समथिंग, ठीक है. इट हैज़ अ सर्टेन ट्रिगर्स. सो व्हाट इट डज, व्हेन दैट ट्रिगर goes out, the thing or that problem resolves. So the life even changes, the stress also relieves. So the stressors are there, these divorces or illnesses or anything like that are your stressors, ठीक है. तो ये stressors जब आपके सर पे आते हैं तो तब आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है. लेकिन वो लाइफ के उस अरसे में ही होता है, ठीक है. वो सर्कमस्टेंशियल स्ट्रेस होता है, वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं होता. हम इस पर भी बात करेंगे कि सर्कमस्टेंशियल क्या होता है स्ट्रेस, जो एक सर्कमस्टेंसेस के साथ चलता है, यानी लाइफ इवेंट्स के साथ चलेगा, वो हर वक्त नहीं चलेगा आपके साथ, वो रिजॉल्व हो जाएगा बाद में. क्रॉनिक में क्या होगा कि आप देखेंगे कि वो लंबे अरसे तक जब सर्कमस्टांसेस भी सॉल्व हो गई, लेकिन वो आपके जहन, आपके जिस्म, आपके दिमाग में है, तो वो चीज़ आपकी क्रॉनिक, लंबे अरसे तक वो क्रॉनिक में तब्दील हो जाएगी और फिर वो एक डिप्रेशन का बोर्ड में चली जाएगी, ठीक है. तो एक चीज़ याद रखनी है आपको कि क्या डिफरेंस है. फिर क्या है स्ट्रेस के बारे में? स्ट्रेस ये है कि आपका, बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि वो बहुत सारे कामों को अपने कंप्लीट करने के लिए ले रहे होते हैं और वो रिलीव हो जाते हैं. डिप्रेशन का डिफरेंस एक मेन है कि डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है. सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मेंटल कंडीशन एंड नॉट अ मेंटल कंडीशन, सही है. तो स्ट्रेस मेंटल कंडीशन नहीं है लेकिन डिप्रेशन है. डिप्रेशन में क्या होता है कि वो पूरे पर्सन की जो एबिलिटी होती है काम करने की, उसके फंक्शंस में इंटरफेयर कर देता है. यानी वो कॉन्सेंट्रेशन के अलावा वो आगे मजीद अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील करता, वो होपलेसनेस में चले जाता है, वो वर्थलेसनेस में चले जाता है, वो ये समझता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, और वो अपने आप को कुछ नहीं समझता, ठीक है. और इवेंचुअली एक डिप्रेशन का पेशेंट सुसाइड की तरफ जा सकता है, ठीक है. सो यू कैन सी इट स्टार्टेड ऑफ विद योर इमोशंस, देन इट वेंट ऑफ विद योर स्ट्रेस, एंड देन फर्दर इट वेंट ऑफ विद योर डिप्रेशन, एंड द डिप्रेशन एंड एंजाइटी actually led to the suicide. So it's a life-changing effect which you have to concentrate, you know, with the intervals. So ये नहीं है कि आप भूल जाएं और ये ठीक हो जाएगा, या ये कुछ नहीं है, या सामने वाले को आप घर में देखते हैं तब आप उसके लिए कुछ केयर ना करें, ठीक है. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सामने वाले को किस तरह से जो है वो इस चीज़ में मदद करें ताकि वो उस चीज़ से बाहर निकल आए. एक और चीज़ डिप्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा पेशेंट होता है वो सैडनेस या लॉस ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है, यानी उसका किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता और इवेंचुअली वो जो है वो हर चीज़ को विड्रॉ करने पे चला जाता है. जिस तरह से स्ट्रेस में एंगर था, इसमें भी एंगर है, लेकिन इसके अंदर ये है कि एनर्जी और मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट का, और सुसाइडल थॉट्स आएंगे कि मैं अपने आप को किसी भी तरह जो है वो मार दूँ, मतलब आई टेक अवे माई लाइफ, ठीक है. सो और गिल्टी बहुत ज़्यादा होती है. डिप्रेशन का पेशेंट यूजुअली ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे कोई उसके लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा गिल्टी भी होता है, ठीक है. तो ये बहुत उस टाइम पे देखा गया है कि उस पेशेंट्स में कि जो जिनमें डिप्रेशन होता है वो अपनी लाइफ को जो है वो आगे लेके चले जाते हैं और वो फिर आगे आगे जाके सुसाइड में होते हैं. लेकिन उस टाइम पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो पेशेंट उस लेवल के डिप्रेशन पे है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उसको हेल्प के लिए, एक्सटर्नल हेल्प के लिए लेके जाए. अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, आप एक फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ के लिए भी एक डॉक्टर है, वो इज साइकोलॉजिस्ट, सही है. साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको यूजुअली साइकोथेरेपीज देगा, ठीक है. साइकेट्रिस्ट के पास जाएं जो आपको मेडिसिन देगा, ठीक है. तो ये साइमल्टेनियस एक इफेक्ट होता है जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. यूजुअली लोग जो है वो उसको बहुत इग्नोर करते हैं. देखा गया है कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं जो स्ट्रेस से शुरू होते हैं और वो उनका स्ट्रेस हम नहीं कर रहे होते हैं रिलीव, तो वो डिप्रेशन में तो चले जाते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन का एक अमल जो होता है वो 6 मंथ्स तक चलता है और 6 मंथ्स के बाद देखा गया कि वो सुसाइड के इफेक्ट में आते हैं, ठीक है. अभी जो रिसेंटली मैंने सुसाइड प्रिवेंशन का सेशन किया था तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्होंने किया और देखें ये किस तरह से इफेक्ट हुआ. तो मैंने उनको कहा कि सुसाइड का एक टर्म जो था वो पहले से ही हो चुका था स्टोन्ड. ये 2002 के अंदर WHO ने जब अपना फर्स्ट पेपर लॉन्च किया तो उसमें उन्होंने ये लिख दिया था कि सुसाइड का जो इफेक्ट है अगर हमने आज नहीं रोका 2002 के अंदर
तो वो इफेक्ट आगे चलता जाएगा। तो याद रखें कि ये सुशांत का केस अभी ज़रूर आया है, लेकिन डेफिनेटली उसकी लाइफ में भी अगर आप देखें, अगर आप उसकी बात सुने या न्यूज़ सुने, तो 6 मंथ्स में एक उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आई थी, जिसके बाद उसने ये स्टेप उठाया, ये व्हाटसोएवर जो भी डिप्रेशन का वो पेशेंट था, और उसकी लाइफ सीक्वेंसेस क्या होंगी। लेकिन इट्स हाई टाइम टू रिलीव योर स्ट्रेस, एंड हाउ वी गोना डू इट, विल डिस्कस अबाउट इट। लेकिन इट्स हाई टाइम टू actually relieve your stress so that it doesn't lead to any great problem. So एक चीज़ जो मेरे बार बार इनबॉक्स में भी आ रही थी, मैं चाहूँगी कि आपको बता दूँ कि अब लोगों ने पूछा है कि स्ट्रेस और एंजाइटी इनमें क्या फ़र्क है। मैंने अभी जैसे रिपीट में भी बात कही कि एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। स्ट्रेस जो है ना, आपके रिस्पॉन्स होता है कोई भी थ्रेट का। मैंने आपको जैसे बताया कि आपकी टाइमलाइंस हैं, आपका एग्ज़ाम है, आपका कुछ प्रेजेंटेशन है, ठीक है, एक रिस्पॉन्स है थ्रेट का, ठीक है। एंजाइटी क्या है? रिएक्शन उस स्ट्रेस का। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी आज प्रेजेंटेशन है और मुझे स्ट्रेस है, ओ माय गॉड, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और आई हैव टू टेक इट आउट अ लॉट ऑफ स्टफ टू हैव दैट नॉलेज, मे बी, ठीक है, और अलॉन्ग विद दैट आई हैव टू मैनेज माई हाउस एंड आई हैव टू मैनेज माई लिटिल वन एज वेल. सो दीज थिंग्स creates some stress. But if I will get angry or if I'll react to that stress, that will eventually convert into my anxiety. So that's the point how I'm gonna deal it. I will scheduleize my things. I will give time to my baby and my house, and I'll know, I have done an ample practice. I know my things, so I'll be confident enough to talk about it. So these are the things. Be confident, be hopeful, and carry positivity with you. And not to get anxious about things or reactive about your situations. So stress is very desirable, but excessive stress, it's not important, and it's not affordable as well. So I would like to tell you that why we have to get to know that why people get stressed, and what are the situations. Usually situations occurs in our lives and makes us stressful. And what are the causes which actually occurring around us and making us stressed out? Maybe a person who is very much working out. बहुत सारे लोग होते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जॉब्स भी करते हैं, और साथ साथ अपने स्ट्रेस वो नहीं कर रहे होते रिलीव, क्योंकि उनके पास बहुत बर्डन होता है, हाउस को देखना है, चीज़ों को देखना है. तो मे बी ये कॉज हो सकता है. दूसरा ये हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती हैं, ठीक है, और उन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ये देखा गया है कि कोप अप नहीं हो रहा होता है, और वो स्ट्रेस आपका डिप्रेशन में चला जाता है. मैं बार बार स्ट्रेटजीज आपसे डिस्कस करूँगी एक एक करके, लेकिन मैं चाहूँगी पहले हम लिस्ट डाउन कर दें. मे बी देर माइट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट्स विद योर फ्रेंड्स. आपको लगता है कि आपके दोस्तों के साथ आपकी कोई लड़ाई हो गई है और आप उससे जो है वो कोप अप नहीं कर सक रहे, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके स्ट्रेस का. मे बी अ रिलेशनशिप लॉस और जॉब लॉस. COVID-19 में a lot of people are going through stress. I would say stress, not depression at the moment, but stress because of their job, or because of the environment, or because they can't go out, they can't celebrate. So I think there comes another term which I said at the start, that is resilience. Now people talk about it. Stress के साथ हमेशा से resilience का term बहुत important है. What is resilience? It's actually the adaptability. अब जिस तरह आपके इर्द गिर्द में इतने सारे कोरोना के मसले हैं, आपके साथ आपके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, और आप बहुत सारे काम नहीं कर सक रहे, आपका ट्रैवल रुक गया है, ये बहुत सारे और भी इश्यूज हैं. तो उस सिचुएशन में उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना आपकी रेजिलियंस होगी, ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉस्टर योर रेजिलियंस इन योर स्ट्रेस सिचुएशन, नॉट गेटिंग इनटू दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, रादर अडेप्टिंग इट, एक्सेप्ट करना उसको, or drive yourself towards good things, like involving yourself in some online courses, or listening to some music, or doing some of those tasks which was not done before, writing some books. I will be discussing some strategies, and you'll be amazed that you have lots of things to do in your home. Even you don't have to go out and do it. You have everything in your court, in your house, and you can do it all. So मैंने जैसे बात की कि आपकी ये स्ट्रेसेस है, ठीक है, और इन स्ट्रेसेस को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है उसी वक्त एनकाउंटर करें, ठीक है. अगर आप नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये जब स्ट्रेसेस आपकी जिस्म में आ जाते हैं, तो व्हाट दे डज, दे सिग्नल्स एंड चेंजेस योर माइंड एंड बॉडी, एंड व्हाट डज दे डू, दे रिलीजेस द कॉर्टिसोल एंड द एड्रेनलिन हार्मोन्स.
which actually prepares you for the fight and flight responses. आप जब खुश होते हैं, आप जब चौंकते हैं, आप जब एक्साइटेड होते हैं, तो ये कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं। तो बहुत टाइम पे ये ऐसा देखा गया कि पेशेंट्स अक्सर ये भी कहते हैं कि आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि मेरे तो पेट में जो है ना बटरफ्लाईज हो रही थी, या मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी, या मुझे बहुत पसीने छुट रहे थे, या बहुत मुझे कपकपाहट हो रही थी, जल्दी जल्दी मेरी ऐसा लग रहा था नसें चल रही हैं। तो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस की साइंस है, सिग्नल्स है स्ट्रेस के, जो मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स आपको रिलीज होते हैं और ये सारी जो है ना सिचुएशन दिखती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके दौरान आप जो बहुत अलर्ट हो जाते हैं, आपकी मसल जो होती है वो टेंस अप हो जाती है, ठीक है, और इस दौरान आपकी जो मैदे और आपकी जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना, कुव्वत मुदाफियत वगैरह जो आपकी होती हैं वो रेडी हो जाती हैं स्लो होने के लिए, ठीक है। तो ये दो हार्मोन्स आपके जो ना कल्प्रिट्स हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, तो इनको आप स्ट्रेसेस को जहाँ रोक लेंगे तो ये हार्मोन्स आपके रिलीज नहीं होंगे। कभी आप देखिएगा कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो इन स्ट्रेस में स्टेमर करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक केस भी आया, तो मैंने उनसे ये कहा कि क्या ये बहुत ज़्यादा यूजुअली स्ट्रेस लेते हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो ये हार्मोन्स को कंट्रोल अगर आप कर लें, अपने खुश रहना सीख लें और इन चीज़ों पे आप ना सोचें इतना कि अगर मैं जो है वो ये नहीं हो सकेगा काम तो मेरा क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, ये मेरे आगे जाकर स्ट्रेसेस मुझे क्या कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरह से हम जो है इन चीज़ों को भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने स्ट्रेसेस को छोटा और कैंसिल भी कर सकते हैं कि वो टाइम लाइन छोटी हो जाए उसकी बनिस्बत आप उसको लंबा तक सोचते रहें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये आप हार्मोन्स को जो है वो अपने मेंटेन रखें। एक और चीज़ मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारे पास, और जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी हैं कि आप इन सिम्टम्स को, साइंस को अपने साथ देखते रहें कि किस तरह से आपने जिस तरह सुना कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, आप बहुत थकन महसूस करते हैं, and you can't stop thinking about what you have to do, you know, if you have got the task, you are unable to know कि भाई मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, rather than उसकी आप सॉर्ट आउट करें वेवलेंथ्स को कि ये मैं इस तरह कर दूंगा या मैं इस तरह करूँगा, मैं उसकी टाइमलेस एक्शन प्लान बना दूँ। हम उसके ऊपर सोचते हैं कि मैं कैसे नहीं करूँगा, तो ये ये एक ही चीज़ है लेकिन हम अलग पाथ्स में लेके जा रहे हैं उसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च में बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं चाहूँगी बताना आपको, और उसके अंदर एक डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्केल था, और उसमें उन्होंने जो है वो असेस किया बहुत सारे पेशेंट्स को, और उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्ट्रेस पे कंट्रोल कर गए, वो अपने ग्रेड्स अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे लेकर गए, अचीव कर गए, और उनको ये पता था कि लाइफ को कैसे हैंडल करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू मैनेज योर स्ट्रेस, द लाइफ विल बी मैनेज्ड एज वेल। See, so the stress management is ultimately your life management, and if you control it, you will be thankful for it. So it's very important, and few of the things which I discussed earlier, मैं चाहूँगी कि मैं उसको भी करूँ क्योंकि हमारे पास 20-25 मिनट्स हैं। दो तरीके के स्ट्रेसेस हमारी लाइफ में है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक सर्कमस्टेंशियल होता है और एक क्रॉनिक होता है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। सर्कमस्टेंशियल बहुत अच्छा स्ट्रेस होता है, आपके गोल्स की तरफ आपको ड्राइव करता है ताकि आप अचीव कर सकें, ठीक है। क्रॉनिक में क्या हो जाता है कि आपको वो प्रोग्रेस की तरफ ड्राइव करता है, लेकिन सिर्फ रिस्क होता है कि वो आपको मेंटल और फिजिकल एग्जॉस्शन ना कर जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को देखेंगे कौन से दोनों में से स्ट्रेसेस जो हैं आपकी लाइफ पे भी हैं, ठीक है। बैड स्ट्रेस में आपने सिर्फ देखना है कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी तो नहीं खत्म कर रहा, यानी अगर आप कोई अच्छा काम कर सकते थे वो अच्छा नहीं होने दे रहा, तब आपको पता लगेगा कि अब आपका स्ट्रेस कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इससे पहले आपको पता नहीं चल सकता कि आप अच्छे स्ट्रेस में या बुरे स्ट्रेस में हैं। और अब अगर वो इंडिकेट कर रहा है कि आप कोई मेंटल डिसऑर्डर में चले गए, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करनी है और देखनी है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है। सो एज आई सेड, इन मैनेजिंग स्ट्रेस द रेजिलियंस एक्चुअली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, ठीक है। तो रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और रेजिलियंस को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ स्किल, एंड इवेंचुअली अगर आप इसको इस टेक्निक को अपने साथ रख लें तो आप हैबिट बना सकते हैं, और हैबिट बनाने के बाद अपनी लाइफ के अंदर ये जो है वो एक तरह से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी लूँगी, जी बिल्कुल, आप लोग अपने क्वेश्चंस पोर करते जाएं, एंड आई विल रिप्लाई एट द एंड। ओके, सो वेयर आर वी?
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम किस तरह से जो है वो हाई रेजिलेंस को जो है ना रख सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे हम जो है वो रेजिलेंस को जो है वो स्ट्रेस से रिलेट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड व्हाट आर दी स्ट्रेटजीज यू कैन डू टू यू कैन एक्चुअली बी रेजिलेंट टू स्ट्रेस। कैसे आप रेजिलेंट हो सकते हैं स्ट्रेस के साथ। सो आपको अवेयर रखना है अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कहा कि एक माँ होती है अपने बच्चे की एक कोई भी चीज़ है उसको पता कर सकती है कि वो अपसेट है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जिस तरह आप सामने वाले को जज कर सकते हैं कि आज इतना नहीं बोल रही है, इतना नहीं बोल रहा, तो ये मतलब कोई स्ट्रेस में है, ठीक है। तो ये आपके घर वाले, आपके माँ बाप ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ के बिकम अवेयर। आपको सबसे पहले एक रेजिलेंट होने के लिए टुवर्ड्स स्ट्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ों को साथ साथ देखें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपको अपना ह्यूमर जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है ना। यानी कि हर चीज़ को एक सीरियस नोट में नहीं ले लेना। यू हैव टू बी वेरी एक्साइटेड, यू हैव टू बी वेरी मच एंथुजियास्टिक, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेट टच विद द स्पिरिचुअल साइड। यानी इफ़ यू गेट टाइम, प्रे एंड फॉलो ऑल दी इस्लामिक वैल्यूज विच वी हैव, सही है। तो उसमें आपको रेजिलेंट होने में बहुत मदद मिलेगी, सुकून मिलेगा, एंड यू गेट वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर थिंग्स। सो कीज to stress resilience skills are to have self-awareness, have the attention, focus, persistence, and then letting go all those things which are coming in your way. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी मुझे बहुत इफेक्ट कर रहा है, तो let's just not think over it, ठीक है, and have the positive impact of that person rather than the negative part. देखिए कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपकी लाइफ के अंदर आपको जो है वो पॉजिटिव अप्रोच की तरफ लेके जाती हैं, rather than thinking about it. So how you gonna treat in broader spectrum the stress? सबसे पहले एक्सरसाइज। अब लोग कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज कैसे करूँ, लॉकडाउन है, आई कांट गो। यू कैन डू इट एट होम, ठीक है। सुबह उठें 6 बजे या सुबह 9 बजे उठें और उठ के एक्सरसाइज करें घर के अंदर। अब ये एक्सरसाइज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस के साथ? बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, एंड आई गॉट दैट क्वेश्चन एज वेल। सो स्ट्रेस के साथ एक्सरसाइज का लिंक इस तरह से कि ये स्ट्रेस को एक्सरसाइजेज जो होती है एंडोर्फिन रिलीज करवाती हैं, ठीक है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये फील गुड केमिकल होते हैं, ठीक है, यू फील गुड। सो ये आपके हार्मोन्स जो होते हैं, ये आपके जो केमिकल्स होते हैं, ये आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं कि आप सोएं अच्छा और आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर लें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से जो है वो अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं, क्या आप अपनी एक्सरसाइजेस के थ्रू जो है अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। And one most important thing which is actually taking a lot of importance in our lives, laughing therapy, laughter therapy का मैं बता दूं कि one of the most important एक मैं थेरेपी बताऊंगी कि चल रही है। आपने बहुत सारे सेशंस में भी देखा होगा कि बैठे बैठे आप किसी को हंसाएं या कुछ अच्छे बोल बोलें तो that person will laugh. See, तो it actually promotes the overall sense of well-being for a patient. और फिर वो होता है कि वो जो है वो अपनी लाइफ के अंदर वो एक लाफिंग थेरेपी को अटेम्प्ट कर लेता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। सो द लाफिंग थेरेपी, द लाफ्टर शोज आर वेरी मच रिकमेंडेड. Watch those shows which actually gives you a good impact rather than those shows which actually stresses you out. साल 2 के ड्रामे देखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वरना वो आप इम्पैक्ट को रखेंगे, अपने इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने घरों के अंदर. सो जस्ट वॉच दोज प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स. TEDx देखें, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखें जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हों, कुछ ऐसे लाफ्टर शोज देखें, मोमो के ड्रामे देखें जो आपको मज़ा और आपको जो है हंसाते हों. ठीक है. सो समथिंग न्यू आपको लर्न करने की ज़रूरत है. ये एक और स्ट्रेटजी है स्ट्रेस मैनेजमेंट की. सो हाउ यू गोना डू दैट? कोई न्यू लैंग्वेज सीखें. आजकल ऑनलाइन चाइनीज़ क्लासेस आ रही हैं, फ्रेंच क्लासेस हैं. कोई लैंग्वेज सीखें, कोई हॉबी लें, कोई कटिंग क्लासेस ले लें, कोई न्यू हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, समथिंग विच इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट. कोई भी चीज़ ऑनलाइन आप सीखें, कोई सेशन सुने. हमारे लिए एक बहुत अच्छा टाइम है कि हम ये ऑनलाइन वेबिनार्स करते हैं और हम वी गेट टू कनेक्ट विद पीपल. सो इट्स हाई टाइम दैट वी जस्ट गेट दिस अपॉर्चुनिटीज और वी गेट टू लिसन टू लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड अस. और ये राइट प्लेटफॉर्म है जो हमारे हर फॉरम्स में हो रहा है. आई एम वेरी मच आई एम अप्रिशिएटिंग वाइज दैट दे हैव एक्चुअली कनेक्टेड एवरीवन विद ईच अदर. In this way they get to know new things from all these speakers. So I think this is something to get to know and to build your confidence through learning new things. Then avoid the alcohol and drugs is very important thing, and I must say कि it worsens your health and worsens your problem. For a time being लोग ये कहते हैं कि हाँ गम में जो है वो शराब पी लेना अच्छा होता है, and I think this is just the perception of a person. In long term it gives you a lot of problem and worsens your health.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये अपने आदत को भी जो है वो ठीक करें, ताकि हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लिविंग आपको खुद बूस्टअप करती है आपकी एनर्जी को. Then we can also volunteer, being part and parcel of being in this community, and we are very much privileged and very much honored that we get the chance to volunteer in all the capacities. कोई जूम लिंक को कनेक्ट करवा देता है, कोई स्पीकिंग करके कर देता है, कोई एक चीज़ अरेंज करवा के वॉल्टियर कर देता है. सो इस तरह से हम वॉल्टियरिंग भी कर सकते हैं. देन द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सुबह उठें, और ये मैंने कल अपने साथ खुद किया है, जब आप कोई भी स्ट्रेस में हो और जब आप अचानक से अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइज में डालें, यानी 1 मिनट के लिए सांस अंदर और बाहर लें. अगर आप खुद करके भी देखेंगे, अगर हम सब एक साथ करें डीप ब्रीदिंग को, तो आप खुद देखेंगे कि आपको वो एक बॉडी रिलैक्सेशन देगा, कामनेस देगा. अब ये 2 चीज़ें, रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन. रिलैक्सेशन ये है कि आप भाई रेस्ट करने चले गए, या आपने टीवी वगैरह देख लिया, या शो देख लिया, या सुकून से अपने आप को रेस्ट दे दिया. रिक्रिएशन ये कि जो आपने अपने आप को कोई एक्टिविटी में डाल दिया. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं कलरिंग करना चाहता हूँ, या मैं कोई पेंटिंग करना चाहता हूँ, या मैं कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो वो एक अपने आप को आपने एक एडवेंचर में डाला. ठीक है, तो रिलैक्सेशन एट दिस मोमेंट using the breathing exercise is very much important. And then most important, meditate. It actually focuses your thoughts and calms you from jumbled worries. So it's very important कि आप किस तरह से meditate करते हैं, अल्लाह को याद करें, ठीक है, और किस तरह से आप जो है वो, अगर आप बिगनर है तो आप किसी से पूछ के या वीडियो देख के आप मेडिटेट करें. लेकिन आप सुकून से एक जगह एक अपना पोर्शन बना लें, और वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मैं यहीं बैठ के जो है रोज़ाना अपने टाइम पे मेडिटेट करूँगा तो मुझे रिलीफ होगा. ठीक है, सो किस तरह से आपने टेक्निक्स लेनी है. यू डोंट हैव टू थिंक दैट स्ट्रेस इज अ क्राइसिस, यू हैव टू टेक इट एज अ चैलेंज. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देन यू कांट फाइट विथ स्ट्रेस, बट यू हैव टू एम्ब्रेस दी स्ट्रेस. तो एक्सेप्ट कर लें, रिजिलियंट बन जाएं, अडेप्ट कर लें, तो स्ट्रेस मैनेज खुद ब खुद होगा. And don't overthink, just do take the action. So eventually you'll get to know कि मुझे करना क्या है. अगर ये प्रॉब्लम मेरे पास आ तो गया है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे लिए क्या स्ट्रेटजी है. ठीक है, तो अपने क्राइसिस को मैनेज करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिड्यूस करूँ इन चीज़ों को, तो पहले देखिए कौन सी टाइमलाइन फर्स्ट है. अगर आपको जो चीज़ पहले करनी है टाइमलाइन में, तो वो आप उसको सबमिट करें, और फिर बाद में अपने ब्रेन को जो है ना स्ट्रेन दें. सो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना आपकी कोई भी चीज़ की, वो आपकी कॉग्निटिव स्ट्रेन, जो दिमाग पे आपके प्रेशर्स पड़ते हैं, उसको वो कम करता है. ठीक है, और क्या करता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिमूव करता है. तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो आपकी ना, उसको आपको फ्री करने की बहुत ज़रूरत है. वो क्या रीज़न है कि भाई इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये अभी मेरे साथ हादसा हुआ था, ये मेरे साथ ये क्यों करता है हमेशा. तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको. उसको उसी वक्त रिमूव कर दें ताकि वो आगे आपकी लाइफ पे असर ना करे. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो अच्छी म्यूज़िक सुने, अपने आप को बिजी कर दें. आपको लगता है कि मैं इस पार्ट और पार्सल में कोई गॉसिप का बन जाऊंगा विक्टिम, तो आपको बेहतर है कि आप उससे दूर रहें. अपने आप को कोई ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर दें, कोई ऐसी चीज़ में डाल दें जहां आपको बहुत खुशी मिलती हो. फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मैं इस पाथ से गुजरता हूँ, यहाँ पे मैं प्लांट रख दूँ तो मेरे लिए ये इन्वायरमेंट को देखना बहुत खुशी है. जैसे मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, और मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए हीलिंग होती है, थेरेपी है एक तरह से, तो आप वो करें. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई पिक्चर और कोई वीडियो बुकमार्क करके रख दूँ कि मुझे वो नेक्स्ट डे भी देखनी है, मुझे वो खुश करती है सोने से पहले, या मुझे हमेशा से उसको देखते हुए खुशी महसूस होती है, तो वो करें. ठीक है, कोई म्यूज़िक आपको खुशी देती है तो वो सुने. ठीक है, ऐसी चीज़ें देखें जो आपको बहुत ज़्यादा एंडोर्फिन्स को जो हाईलाइट करने के लिए या रिलीज़ करने में हेल्प करती हों, ना कि ऐसी चीज़ें करें जो आपको प्रॉब्लम देती हो. डीकैफिनेटेड चीज़ें लें, जिसमें आप कॉफ़ी वगैरह ना लें, टी डीकैफिनेटेड लें. रेस्ट करें, अपने आप को खुश रखें. कोई कैंडल्स वगैरह जो है वो फ्रेगमेंटेड रखें अपने रूम में, वो भी बहुत ज़्यादा अरोमा से आपको सुकून मिलता है. अक्सर ये भी देखा गया है हमारे घरों में कि अगर आप एक लैंप रख लें, ब्लू लैंप रख लें, तो वो अच्छी वाइब्स को जो है वो करता है रोटेट आपके रूम्स में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटी छोटी टिप्स हैं कि जिसमें आपको ये पता होगा कि किस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा योगा, मैंने आपको बताया योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हेल्प करता है आपको बहुत सारे ऐसे क्रूशियल केमिकल्स जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन्स, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्या क्या करते हैं हार्मोन्स, और ये फिर आपको खुशी पैदा करते हैं, आपको सुकून करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत फिट हैं और बहुत आप हैप्पी अपनी लाइफ में.
कोई गेम्स भी आप खेल सकते हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। वो कौन सी गेम्स हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को गाली देने का दिल चाहता है या आपको बहुत गुस्सा आता है कि आज तो मैंने इसकी ऐसी की तैसी कर देनी है, तो उसको ग्रज को है ना उसी वक्त खत्म करें। पेपर का पीस लें, उस पर लिखें और उसी वक्त उसको जो है ना पेपर टोस्ट करके क्रबल्ड कर दें। सो उस क्रम्बल्ड पेपर को आप थ्रो कर दें बिन के अंदर, डस्टबिन के अंदर फेंक दें और उसको उसी वक्त उस चैप्टर को क्लोज कर दें। ठीक है, ये ना सोचें कि मैं आज उसके साथ जो है ना उसने मेरे साथ किया है तो मैं तो उसको सीधा करके रहूंगा। डो नॉट कैरी दोज ग्रजेस विथ यू। ठीक है, देन वी हैव सम स्ट्रेस काइंड ऑफ बॉल्स। सो व्हाट दोज बॉल्स डज, आप उसको स्क्वीज करते हैं तो आपका स्ट्रेस को रिलीव करता है। तो वो बहुत अच्छे बॉल्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं, वो गेम्स खेल सकते हैं और आप उसको जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप उसको बस पकड़ लें और उसको स्क्वीज करते रहें। ठीक है, या कुछ मोल्डेबल भी होते हैं स्ट्रेस बॉल्स, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी आपको रिलीव करते हैं। कोई पजल वगैरह खेल लें और वो पजल की गेम के अंदर दौरान आप जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व रखें ताकि आपको इर्द गिर्द का कुछ पता ही ना हो। ठीक है, अक्सर मेरी तो आदत ये है कि जब मैं कभी कोई ग्रुप में बैठती हूँ तो मैं अपने काम से काम, और अगर कोई कहता भी है सामने वाला तो मुझे 2 मिनट बाद वो बुलाते हैं, मुझे कहते हैं तुमने सुना, तो मैं कहती हूँ नहीं, आई डिडंट गेट कनेक्टेड, मैं नहीं सुनती। ठीक है, मैं अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर देती हूँ दूसरी चीज़ों में कि अगर तो वो मेरी नहीं है उस वक्त मेरा वहाँ होना, तो मैं बैठ के भी उस बात को नहीं सुनूंगी, इग्नोर कर सकती हूँ। ठीक है, तो इग्नोर करना एक बहुत अच्छी आर्ट है और आप अगर उसको ले लें तो आप जीत लेंगे। ठीक है, रादर देन पोकिंग इन समवन्स मैटर और इंटरफेयरिंग और लेटिंग नो कि ओ उसने मेरे बारे में ये बोला, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा हर्ट करेंगी बनस्बत आप अपनी लाइफ में खुद ही मगन रहे। ठीक है, कि किसी को आपको जगाना पड़े कि ठीक है आपने सुना कि नहीं सुना वो गॉसिप, तो आप कहें कि नहीं सुना ही, तो वो बात वहीं खत्म हो जाए। ठीक है, देन बहुत सारे जगहों पर हमने देखा है कि आप एक और गेम ये खेल सकते हैं कि आप कॉन्फ्रेंस कॉल करें अपने दोस्तों के साथ और कोई भी गेम ओनो वगैरह खेलें। ठीक है, जस्ट फॉर फन इन कोविड यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट दैट। एंड देन देयर इज़ अ बबल रैप गेम, और बबल रैप गेम में यही होता है कि आप जो है वो बबल के साथ जो है वो उसको लेकर और उस बबल को रैप करके और उसको थ्रो कर देते हैं और उसको ब्लो करते हैं। इस तरह से डिफरेंट टेक्टिक्स होती हैं, ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, तो साइमल्टेनियस आप ये जो बबल रैप गेम भी कर सकते हैं। सो दीज वर द लिटिल गेम्स विच यू कैन एक्चुअली implement. And just to conclude what we have actually discussed today, the most important management skill should be to have a self-control. As I said, do not eat bad, do not talk bad, do not hear bad, do not speak bad. Then it will never exacerbate your stress. So this is very important, how you have your self-control. Okay? Then the second point which we have discussed is exercise has to be there in your life, and you have to indulge yourself for the mental well-being. And then you have to learn how to sleep well. Having the same pattern, कल मैं 10 बजे उठा, आज मैं 12 बजे उठा, आज मैं सुबह को 9 बजे उठ गया, that is actually very fluctuative thing. ठीक है, उससे ये क्या होता है कि आपका ब्रेन होता है ना वो प्रोसेस करना बंद कर देता है और वो बैलेंस नहीं रहता आपकी लाइफ के अंदर। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस नहीं होगा ना तो आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम यानी कि जो आपके ऑर्गन्स होते हैं ना उनमें भी बैलेंस नहीं रहेगा। कि आपको पता होगा कि मैं इस वक्त खाना खाता हूँ तो मेरा हजम इतने बजे हो जाएगा, वो एक पैटर्न नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो एक पैटर्न रहना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही बात की। चौथी टिप, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मैं कंक्लूड करते हुए सारी टिप्स को दोहराना चाह रही हूँ। रिलैक्सेशन टिप्स के अंदर आपको मैंने बताया कि आप मेडिटेट करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें और लॉट्स ऑफ योगा एक्सरसाइजेस, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड देन जर्नलिंग, writing down your emotions and putting them on the paper and throwing it away can be a thing, but also if you would like to keep those emotions and identify those emotions and write it down on the diary, you can actually be relieved by it. ठीक है, अक्सर इस तरह भी होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम भी होता है जब आपका प्रेगनेंसी का टाइम होता है, बहुत खुश होते हो। ठीक है, और लेकिन जब प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ होता है तो थोड़ा सा आप डिप्रेशन की तरफ और स्ट्रेस की तरफ जा रहे होते हो कि मैं कैसे लाइफ को कोप अप करूंगी एंड आई इवेंचुअली लूज ऑल ऑफ माई ब्यूटी एंड एवरीथिंग पीपल यूज्ड टू सी एंड थिंक लाइक दैट। सो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को जॉट डाउन करें या अपने लव्ड वन से शेयर करें जिनको आप सीक्रेट सर्कल में रखते हैं या आपको लगता है कि वो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। आपकी वो सीक्रेट्स को अपने तक रखेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उस चीज़ को वहीं पर वहाँ सॉल्व कर दें, अदरवाइज वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा आपका स्ट्रेस। यानी कि आपका जब बेबी बॉर्न हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट डाउन योर इमोशंस एंड जस्ट
feel better for that moment because you have done it, your task. Okay? And then we have the time management and good routine, as I mentioned. Reducing the cognitive load, देख लें कौन सी चीज़ आप पहले कर सकते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा हावी ना करें चीज़ों को. And most important, resting is very important. So the part and parcel of our today's session is to practice resilience, which is very important. And you know, celebrating small victories and wins actually gives you a very motivation. अगर आपने कोई भी छोटी चीज़ अच्छी की है, आपने कोई किताब लिखी, आपने कोई आज सेशन लिया, या आपने कोई जगहों पर कोई छोटी सी गेम में विन किया, या किसी से आपने कोई अच्छी बात की, या किसी की कोई मदद की, anything you have done it, छोटी छोटी खुशियाँ, count your blessings, और उसको जो है वो आप प्रैक्टिस करें. ठीक है? As I said, your skill will convert into your life changing habit. ठीक है? And eventually your nature. So आपकी रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैनेजिंग योर स्ट्रेस. ठीक है? और कम्युनिकेट करें, अगर कोई प्रॉब्लम है अपना दोस्त बना ले हर जगह. ठीक है? ताकि आपको पता हो कि मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को नहीं सॉल्व कर सकते और आप वेंट आउट नहीं हो सक रहे, तो वहाँ पे आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है और आप ले सकते हैं उस एक्सटर्नल हेल्प को. ठीक है? एंड आई बिलीव वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ द पॉइंट्स, एंड I would just want you to jog your brains over the last thing which I want to convey to you all. Always decide your actions. And what do I mean by deciding your actions? आपका दिमाग जो है ना आपके बहुत सारे plans को बहुत पसंद करता है. Your brain loves your plans. So it's better to stay motivated, plan up your life, and write down what good things have happened in your life, and just look at those points later in the life. ठीक है? So enable to it will enable you to reduce your stress. So rather than pushing yourself and stressing out, because stress has those all things with them. ठीक है? It's just how you take about it. It will push you either forward or backward, but you have to choose in which way, in which direction you have to carry. And I think we have covered all of the points. I believe I would just end up with one of the very much important quote which I really liked. Within every setback or obstacle there is the seed of an equal or greater advantage or benefit. So it's now your task that how you take those advantages or the benefits from those seeds. You just have to find out that. So with this I would like to end my session, and I really want to have those questions with the audience. If any anchor can take up the questions, or if they have, over to you. There is just one, Ravita, there is just one comment that Imran has shared. We don't have any such questions, but यहाँ पे एक comment है जो Imran has shared about how he was coping up with his stress and that. Okay. Yeah, I have just read. I hurt my eyes in 9th class, so for a couple of years I used to feel stress. But I sought out a solution by God's will, and I started washing my eyes regularly with water and shukr Mola after I became stress free. So find out solution to your problems. Very nicely said. And I must say, मैंने आपको पहले भी बताया कि find out solution in spiritual values. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो है ना बहुत चीज़ों में इसलिए डिस्कनेक्टेड भी हो गए हैं, दूर हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को खो चुके हैं. लॉकडाउन हो गया है, तो why to practice spiritual things? I think this is the time you can give a more response to your spiritual things. और मुझे लगता है यहाँ पे लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ों को भूल चुके हैं. किस तरह से वो अपने आप को उस प्रॉब्लम से हटाएंगे, किस तरह से वो स्पिरिचुअली करेंगे. टाइम नहीं है. मेरे ख्याल से आपके पास बहुत टाइम है. इफ़ यू कैन watch a lot of episodes, you can actually pray and you can ask for help from Allah. ठीक है? And I think there is no savior than Allah. After Allah there are saviors, but Allah is the ultimate savior for everyone's problem. So it's high time and it's best time to actually practice what you have in your spiritual things. So I think this is a very nice thing he has taken up from this session as well. And thank you so much for your lot of good feedback. I'm very much thankful. Okay, so short time memory loss is a type of stress or not? If yes, how to recover from it?
Yes, it's a type of a stress. I would say short, as I said, that circumstantial stresses जो एक वक्ती तौर पे होते हैं, कुछ वक्त के हिसाब से हो रहे होते हैं, वो डेफिनेटली आपके जो है ना स्ट्रेसेस में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं. सो कैसे रिकवर करेंगे इसको? मैंने जैसे बताया कि उस वक्त को आप इस तरह से लें कि भाई मैं अचीव कर लूँगा. पहले तो आपको ये होना चाहिए कि मैं अचीव कर लूँगा. अगर आप ये सोचेंगे ना, अपने आप को बैकवर्ड ले जाएंगे कि मैं ये नहीं कर सकूँगा, उस सिचुएशन में आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम को. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने ये सोचना है कि मैं अचीव कर सकूँगा, कॉन्फिडेंट रहना है, होपफुल रहना है, ठीक है, मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है. तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी. अब जब आपने स्टार्ट कर लिया है, अब उसके दौरान में आपको हो सकता है स्ट्रेस हो रहा हो कि ओ माय गॉड मुझसे वो क्वालिटी नहीं हो सक रही, ठीक है, तो आपने यकीन रखना है अल्लाह पे कि ठीक है मैंने जितना दिया है मैं उसको कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करूँ. दैट्स इट. मेरी जितनी कॉम्पिटेंसीज थी, मेरे जितने सर्कमस्टांसेस थे, अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि आपकी वो चीज़ें स्मार्टली अगर हो जाएं तो वो आपको वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देती हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं था और आपने जो है ना स्ट्रेस में वो काम किया तो वो अच्छा नहीं होगा. मैंने अक्सर देखा है कि वो स्ट्रेस में काम ज़्यादा अच्छा होता है और रिजल्ट भी अच्छे आ जाते हैं, ठीक है. तो मैंने हमेशा बार बार कहा कि स्ट्रेस एक मोटिवेशन है आपके लिए, लेकिन एक्सटेंसिव नहीं करना आपने उस चीज़ को. उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को, अगर वो पॉजिटिव शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसको वहीं पर करके और ख़त्म कर देना है, उसको रिजॉल्व करना है, कंप्लीट करना है उस टास्क को. और अगर वो नेगेटिव है तो उसको एक अपनी लाइफ से निकालने के लिए आपने एक पेपर पे लिख के फेंक देना है उसको डस्टबिन में, या उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है कि अगर उस बंदे ने मेरे बारे में ये कहा तो क्या मैं कोई फॉल्ट में थी, क्या मेरी तरफ से वो कोई गलती हुई थी, क्या मैं उसको सही कर सकती हूँ, या मैं क्या उससे डिस्कस करके उस बात को सॉल्व कर सकती हूँ. सो देयर कम्स दी रेजोल्यूशन एज वेल. सो आप बैठ कर किस तरह से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं और किस तरह से सामने वाले के साथ टेबल टॉक करके आराम से आप उस चीज़ को कन्वे करते हैं कि क्या मेरी कोई ऐसी बात थी जो मैंने गलत की, तो वो उस चीज़ को वहाँ रिजॉल्व करें. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई थिंक वी ऑल गो थ्रू दिस शॉर्ट टर्म मेमोरी स्ट्रेसेस. आई वुड लाइक टू हैव मोर क्वेश्चंस इफ देयर इज एनी. There is one question which has come privately. मैं नाम वगैरह नहीं लेती. जी जी. What are emotional symptoms of chronic stress? Okay, so as I said, this is very important and emotionally chronic में अगर कोई stress में है, जो कि मैंने बताया कि long term पे चल रहा होता है, so वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा गया कि patient burst out होते हैं, burnout बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, patient रो रहे होते हैं, हेल्थ में बहुत ज़्यादा कमी आ रही होती है. यानी फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर वो रोते हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप को ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को बहुत चीज़ों में जो है वो इफेक्ट करते हो. फॉर एग्जांपल फिजिकली असॉल्ट करते हो खुद पर्सनली, या इन्फ्लिक्ट अपनी इंजरीज करते हो, तो वो इमोशनल जो है सिम्टम्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं, या वो अपने उस इमोशनल सिम्टम्स को लेते हुए अपनी फैमिली से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं. तो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, एंगर में आ जाते हैं. तो दे गेट अ लॉट ऑफ यू नो थिंग्स इन दियर लाइफ जो उनको इफेक्ट करती है अल्टीमेटली उनकी फिजिकल हेल्थ पे या फिजिकल सिम्टम्स पे. सो इमोशनली वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, अपनी लाइफ को लेते हुए वो रेजिलियंस को बिल्कुल लो ले जाते हैं और वो इवेंचुअली इमोशनली बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं. सो वन थिंग, बिकॉज दिस क्वेश्चन केम अप, आई वुड लाइक टू टेल यू एवरीवन कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट. Because if you are not emotionally intelligent, then you can't have the control of your life. So ये बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कौन सी चीज़ को आपने उस तरह रिएक्ट करना है, ठीक है. बहुत सारे लोग ओवर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और वो बर्नआउट करके अपने आप को सामने वाले को जो है वो गुस्से में जवाब दे देते हैं. तो उस चीज़ को आप उस टाइम पे ही ख़त्म कर दो, सॉल्व कर दो, अपने लव वन से बात कर लो, तो वो आपकी प्रॉब्लम जो है उस वक्त सॉल्व हो जाती है. जी. Another question came up. Going school, children also suffers from stress, but they cannot express it. How do we know if the children have some stress? What are the symptoms? Excellent question. And I think एक research में कहा गया था कि stress सिर्फ middle age को होता है and eventually वो फिर older age पे बढ़ जाता है. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. आजकल हमारे students, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे kids little ones हैं, they have a lot of stresses in their life. So what are the points where we can actually see? ऐसे बच्चे जो स्कूल का स्ट्रेस लेते हैं या एग्जाम्स का स्ट्रेस लेते हैं, सबसे पहले आपको ये साइन देंगे कि उनके पेट में जो है वो दर्द या पेट में बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी.
क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि स्ट्रेस में जो पेशेंट्स होते हैं उनको मैदे में तेजाबियत बहुत रहती है। तो बच्चों के अंदर ये पीडियाट्रिशियन, जो WHO के पीडियाट्रिशियन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने ये सबसे पहले कहा था कि बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होंगे। आपको दिखेगा कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं और मैदे में बहुत मसला है, यानी वो खाना नहीं खा रहे होंगे या खाना खाते होंगे तो उनको इस तरह से सुकून नहीं मिल रहा होगा, या फिर खाने में बहुत ज़्यादा जो है आगे पीछे करते होंगे, यानी उनके एपेटाइट में कुछ इश्यूज़ होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये 3 साइंस आपने देखनी है। इवेंचुअली वो स्ट्रेसेस में ही अगर वो हैं तो सबसे पहले वो ये भी करेंगे कि सामने वाले पेशेंट यानी जो बच्चा होगा वो ये करेगा कि अपने अगर उसके होमवर्क्स हैं तो होमवर्क्स में कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉपर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल वो अपने होमवर्क्स को बहुत ज़्यादा एक तरह से लिंगर ऑन्स करेगा, यानी अगर आप उसको कहेंगे कि आज कर लो तो वो कहेगा मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, यानी वो अपने टास्क को उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं कर सकेगा जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया। तो वो होमवर्क्स को बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन करेगा, एपेटाइट्स में उसकी प्रॉब्लम होगा, स्कूल जाने से वो बहुत ज़्यादा डरेगा, ठीक है। और ये स्ट्रेसेस जो हैं उसको वो एक्सप्रेस कर रहा होगा इन साइंस के थ्रू, वो आपको वर्ड्स में नहीं बताएगा। अगर तो आप बहुत अच्छा पेरेंटिंग में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप बच्चे के साथ बैठें, उससे बात करें, उससे ये सवाल पूछें कि क्या कोई मसला है, कोई चीज़ वो ऐसी कोई है जो डिस्कस करना चाहते हैं जो आपने नहीं पूछी उससे। तो ये चीज़ें तरीके होते हैं जो आप बच्चे से टेबल टॉक करके बात कर सकते हैं। या उसको एक और तरीका WHO ने भी बताया है कि आप बच्चों के सामने कोई ऐसी स्टोरीज बोले जो आपको लगे कि उससे लिंक्ड है, अपनी कोई इमेजिनरी स्टोरीज, और उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो इमेजिनरी स्टोरीज के अंदर थ्रू दैट आप उससे वो बात निकालेंगे। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि एक बच्चा स्कूल जाता था और उसका एग्ज़ाम होने वाला था। एग्ज़ाम से पहले उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ और उसने वो एग्ज़ाम में चैप्टर वो याद करना ही भूल गया। तो मुज़म्मिल, आपके साथ कभी ऐसा होता था? तो आपने उससे बोलते बोलते कहानी, स्टोरी टेलिंग, रोल मॉडलिंग करके सवाल पूछना है, और देयर एंड देन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ही कहते हैं कि देयर एंड देन बच्चा वो जवाब देगा जो उसको बताना था, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू दी स्टोरी टेलिंग एंड यू जस्ट answer those queries as well. And at that time parents would come in, and parents motivation and parents have the those links with the kids is very crucial. यहाँ पे जनरेशन गैप की बहुत बात आती है कि पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के साथ जो है वो टाइम नहीं स्पेंड करते बिकॉज दे आर एग्जॉस्टेड बाय अ लॉट ऑफ प्रेशर्स। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने वर्क को और किस तरह अपने बच्चों को आपने प्रायोरिटाइज करना है, और आपने देखना है कि कहाँ मैं कौन सी चीज़ कर सकता हूँ जो मेरे बच्चों की तरबियत को अफेक्ट ना करे, अदरवाइज वो और मल्टीपल इश्यूज में जा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जो है वो मसले मैंने देखे हैं बच्चों में जो पेरेंट्स के टाइम ना देने की वजह से होते हैं स्ट्रेसफुल, ठीक है, रादर देन उनकी स्टडीज़। बट क्योंकि स्टडीज़ तो उनके टीचर्स और ट्यूटर्स कभी कभी कवर कर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो कवर कर सकते हैं वो कोई और कवर नहीं कर सकता। I have a lot of questions coming up. I would like to take these questions. Okay, thank you so much, Saniha. How do you encourage elders to seek therapy for emotional stress caused by death, divorce, and such tragic times in their lives? I think for the elder ones, it's very important to just talk to them every day motivate them. It's very important because अगर आप देखेंगे कि ये एक टाइम का अरसा होता है जब स्ट्रेसफुल होता है, जब आप कोई किसी को खो देते हैं या कि लाइफ में ऐसा कोई मरहला आ जाता है व्हेन यू लूज समवन। सो एट दैट टाइम एल्डर्स को आप ऐसी मूवीज़ दिखाएं जो उनके टाइम की हों, या आप ऐसी कोई चीज़ें डिस्क्राइब करें जो उनके टाइम की हों, कोई खुशी वाली चीज़ें उनसे डिस्कस करें ताकि वो उन चीज़ों को भूलते जाएं। गुड मेमोरीज को आप सामने लाएं ताकि वो रिकॉल उन चीज़ों को करें और उसी में खो जाए, ठीक है। कोई उनके लिए किताबें लाएं जो वो पढ़ना चाहते हैं, कोई अखबार लाएं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें, या उनके साथ कोई गेम्स खेलें, या डेली अपने ज़माने की कोई स्टोरी टेलिंग करें, ठीक है। यानी ऐसी स्ट्रेटजीज आप ओल्डर्स के साथ करें, एल्डर्स के साथ करें, ताकि उनको जो है उस तरह का जो है वो मोटिवेशन मिले। यहाँ पे बच्चों का बहुत रोल आता है कि वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखें रादर देन उनको वो अलग कर दें, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ओल्ड हाउसेस में जो है वो अपने पेरेंट्स को भेज देते हैं और वो स्ट्रेसेस में और मजीद आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्रूशियल टाइम में या इसके बाद भी आप अपने पेरेंट्स के साथ डेली बात करें, आप आएँ तो उनके साथ बैठे रादर देन गोइंग बैक टू योर रूम्स, आप उनके साथ टाइम एक अरसा गुजारें, स्पिरिचुअलिटी में उनको और लाएं, उनके लिए न्यू चीज़ें खरीद के लाएं। कभी आपने कोई उनके लिए गिफ्ट ले लिया, या उनसे कोई बातों में उनसे कोई एक डिसीजन लें कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए। जब आप उनको ऑनरशिप देंगे तो वो सोचेंगे, वो देखेंगे कि मेरी एक पोजीशन है मेरे घर के अंदर।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि व्हेन गिविंग ओनरशिप टू योर एल्डर वंस दे एक्चुअली गेट सेल्फ मोटिवेटेड, और जब वो मोटिवेट हो जाते थे इवेंचुअली देयर हेल्थ इज becoming really well. So this is very important for the elder ones. Salima, we are far past the time, but questions start interesting. Yes, we want to make sure we're accommodating as much as we can. Yeah. There's one question anonymously है. I can't bear light of energy savers, very light or sunlight. It's just a thought process and related to stress. Also, does stress have any effect on handwriting? Yes, it does have. As I said, कि stress का पूरी आपकी body के अंदर effect है, right? So आपके पूरे controls जो होते हैं ना, आपके nerves, आपके सारे links होते हैं आपके hormones और chemicals से. So definitely अगर आप बहुत ज़्यादा stressful हैं, cortisol, adrenaline आपका बहुत ज़्यादा release हो गया है, तो अक्सर मैंने देखा है शेकी हो जाता है पेशेंट, ट्रेम्बलिंग होता है. जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि आपके स्ट्रेस में ये सिम्टम्स आएंगे, ठीक है. ये आपके लेटर ऑन जब आप आहिस्ते आहिस्ते जा रहे होते हैं तब जो है ये चीज़ दिख रही होती है. तो येस दे हैव, और लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है. जो मैं थोड़ा फर्स्ट पार्ट जो था आपने कुछ क्वेश्चन में कहा, आई एक्चुअली स्किप्ड ऑफ दैट, इट गॉट स्किप्ड. अगर कोमल आप रिपीट कर दें, जो सेकंड पार्ट था उसका ये जवाब है कि येस इट हैज. The person was sharing that she cannot take strong light. Okay. LED light or light. Does she have the headache? Does she have the headache as well? He hasn't. I mean, he or she hasn't mentioned that. They just said they can't take light bulbs for the correct light. No. So it has. It doesn't have effect with the stress, but yes, it has some effect with the migraine, which is actually occurring due to the stress. So yeah, so it's a sequely. अगर तो patient को stress है, तो eventually वो migraine में light से affected होता है, ठीक है. अगर कोई सामने वाला जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और उसको माइग्रेन की भी हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली अगर लाइट और उसको बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेसर्स या बहुत सारे कॉफ़ी या कोई ऐसे इनिशिएटर्स मिल रहे हैं, तो वो उससे उसको माइग्रेन हो सकता है ड्यू टू दैट स्ट्रेस, ठीक है. एक और शेयर किया है पर्सनली कि उन्होंने अपनी कज़न का शेयर किया है कि वो हैप्पी केलिंग या फेस्टिवल में द कज़न स्टार्ट्स क्राइंग आउट लाउड एंड स्टार्ट्स शाउटिंग, never want to talk on that day. Is it some kind of depression or stress? It could be kind of mania. Because this is abnormal reaction to what happens. Yes, it's a mental illness, and क्योंकि हमारा आज का डोमेन नहीं था, otherwise I would have discussed it 1 hour में. It's actually maniac or you can say a euphoric condition. उसमें ये होता है कि आप बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, पहले बहुत खुशी हो रही होती है आपको, और फिर आप जल्दी से उसको लोअर डाउन करके आप बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाते हैं. यानी बहुत ज़्यादा हाइपर होती हैं आपकी एक्शंस, यानी आपकी बहुत ज़्यादा इमोशंस, और फिर बहुत ज़्यादा लोअर डाउन हो जाती है. इसका ग्राफ बहुत ऊपर नीचे होता है. तो ये एक मिनिएक और या तो मैं कहूँगी यूफोरिक कंडीशंस होती हैं रादर देन स्ट्रेसर. ये स्ट्रेस नहीं होता. एक और क्वेश्चन है, अगर हम उसकी आंसर कर सकें. The person is saying कि काफी stress associated with externally उनसे imposed किया जाता है, जैसे stress coming from family regarding शादी और conflict. Okay, yeah. How to cope up with that? And you don't want to take stress, but there are people wanting you to take stress over that. Okay. Usually मैं कहूँगी कि ये तो एक देखें लाइफ चेंजिंग इफेक्ट्स हैं और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. डेफिनेटली आपके रिश्ते आना नहीं आना वो अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन आप अपने आप को, मैंने पहले भी कहा, उन डिस्कशन से थोड़ा सा दूर रखें रादर देन उन डिस्कशंस में आप इन्वॉल्व हो जाएं. मैं उस वक्त ये चाहूँगी कि आप ये करें. मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि मैं बाकियों को भी ये बताती रहूँ जिन्होंने पहले भी मुझसे बहुत दफ़ा सुसाइड के वक्त भी पूछा था ये सवाल. ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर तो आप अपने आप को उस टाइम के लिए उस थॉट से निकाल दें, ठीक है. यानी आप अपने आप को ये इग्नोर करवा दें कि मैं शादी के लिए मेरी बड़ी बहुत टेंशन है, ठीक है, रादर देन उसकी स्ट्रेटजीज ढूंढें. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि मेरे रिश्ते नहीं आते या रिश्ते में कोई प्रॉब्लम पे प्रेशर कर रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैंने भी नहीं करनी, तो उस टाइम पे आप ये चीज़ें देखें कि आप अपने आप को कौन सी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि ताकि आप उस थॉट से निकल सकें. नंबर 1. नंबर 2, अगर तो आप थॉट से नहीं निकल पा रहे, आपको लगता है कि वो डेली खाने पे, नहाने पे, सोने पे, जागने पे, वो डिस्कशन चाय पे हो रहा है, तो उस टाइम पे आप स्ट्रेटजीज ढूंढें.
फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें कि मैं कोई मैरिज कमेटी वाली से बात कर सकती हूँ या मैं कोई ऐसी बात किसी से कर सकती हूँ जो उस मसले के लिए मेरा हल कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस बंदे के साथ वो बात डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं अगर अपने हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ जो भी मसले के लिए, और मुझे लगता है वो मैं वहाँ से वेंट आउट हो जाऊँगी, ठीक है। अब उस लड़की के लिए कोई ऐसा होना चाहिए या लड़के के लिए होना चाहिए पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड हो या मदर फादर में से कोई एक बंदा होना चाहिए जो उसकी बात को अच्छी तरह सुन सके, ताकि वो उस टाइम पे उस डे के लिए वो उससे रिलीव आउट हो जाए, या उसको हेल्प करे कि कोई स्ट्रेटेजीज, यानी फाइंडिंग और रीऑर्गेनाइजिंग योर स्ट्रेटेजीज फॉर सोल्यूशन ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम इफ यू कांट गेट रिड ऑफ, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दैट्स द वे। इफ यू कांट गेट रिड ऑफ इट, यू हैव टू फाइंड आउट दी ways in solving that, like getting out hold of those ladies who can help in matrimonial issues, or talking to your parents, or talking to your sister or father, or someone who is your safe circle. So it's very important. एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि if crying when you're angry a type of stress, like when you cry when you're angry? If you're angry, if you're crying, if a person starts crying when they're angry, is it an indication of stress? oh yes, definitely. In stress you get irritated and eventually you get angry, and you get so much stress that you eventually don't realize that you are bursting out. See, तो इमोशंस मैंने बताया ना कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आपके जो होते हैं वो आप कभी कभी वीक कर जाते हैं। और रोना, मैं आपको बता दूं कि क्राइंग इज वेरी गुड थिंग। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी बात को अब खत्म कर दिया, उसको आपने पानी में डुबो दिया, ठीक है। तो उसको आप घबराएं नहीं कि मैं वीक हो गया। और मजीद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरी तरह एक दफ़ा रो के दो के बोल के ख़त्म कर देंगे उस बात को, तो वो बात उधर ही माँ आपको आगे परेशानी करेगी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप ये करेंगे कि मैं इसको अभी अपने दिल में रख लूँ और मैं बाद में इसको सॉल्व कर लूँ, और मैं अपने दिल में रखता हूँ, मैं उस बंदे के लिए ग्रज रखे रखूँ, तो वो कभी भी जाने नहीं वाली आपसे बात। हाँ, उसको बोल के एक दफ़ा रो के ख़त्म कर दें, एंड इट्स पार्ट ऑफ स्ट्रेस, येस डेफिनेटली, बट it should not prolong for more than 2 weeks, otherwise it will convert into your depression. Just remember that thing. I think the session norms are it's 9:15 already, which shows that everyone was so interested in knowing and discussing all of that. Thank you. So, participants, thank you so much for participating and sharing your personal stresses and all as an example. General anonymously shared that. Thank you so much. We would like to end this session because we know Salima has the time was important. So I would like to give it over to Rafi Appa to share formally and we can end this session. Thank you so much, Komal. I would really like to thank Salima Appa. मुझे याद है वो दिन जब न्यू मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरा पहला कॉल जो था वो सलीमा आपा को था, so that I can ask her how she managed everything and how was the team and everything. So thank you so much. Almost 1 साल होने को आया है on this position, and when Asif sir told me that this session can be conducted by Salima Appa, I was very excited. And I told him, yes, go for it. It will be wonderful. And truly speaking, the session was awesome, Appa. Thank you. Stress management एक ऐसा area है कि जो इस pandemic में, इस particular time period में, I'm sure a lot of people are facing this particular issue. और आपका session उनमें से बहुत सारे लोगों के लिए I'm sure एक अच्छा road map होगा, एक अच्छा learning opportunity होगी कि जिससे वो बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। एंड इवन दोज पीपल हु आर नॉट एक्चुअली फेसिंग द स्ट्रेस, दे डोंट नो मे बी कि दे आर फेसिंग स्ट्रेस और नॉट, लेकिन कुछ हैबिट्स और कुछ चीज़ें जो आपने बताई, मुझे लगता है लाइफ का अगर हम पार्ट बनाते हैं उन चीज़ों को, तो शुरू में ही हम स्ट्रेस को बहुत जल्दी जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। सो आई रियली लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम ऑफ AKYSB Garden for conducting such an awesome session, and you can see the remarks from our audience. They all have appreciated your session, and inshallah मैं अपनी audience को बताना चाहूँगी कि हम अपने सारे sessions जो है वो hopefully Facebook पे publish करना शुरू करेंगे एक एक करके। और आज हमने 10th session अपना complete किया Tuesday interaction का,
So yes, we are going to take a break as Muzammil mentioned. लेकिन हम जल्दी ही वापस आएंगे with more exciting, more important topics that we will be covering inshallah in the next season. और hopefully हम इन सेशंस की रिकॉर्डिंग्स अपडेट करते रहेंगे अपने फेसबुक पेज पर, तो स्टे ट्यून रहिएगा। और एक और बात, व्हाट्सएप का ग्रुप हम जो है वो बिल्कुल इसको वैसे ही रखेंगे और इस पर कोई हम चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही हमारा सेशन वापस स्टार्ट होंगे तो हम उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर शेयर करेंगे। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड टू अस ऑन दैट ग्रुप एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर वो उस ग्रुप को आप लोग अभी छोड़े ना, क्योंकि हो सकता है हम नेक्स्ट 2 वीक्स में ही सीजन 2 लेकर आ जाएं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सलीमा आपा फॉर ऑल योर टाइम एंड सलीमा आपा स्पेशली हमारे पास जो है वो लाहौर से ऑनलाइन थी, तो थैंक यू सो मच आपा। थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी, थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस, थैंक यू, टेक केयर, याद मदद है, थैंक यू। Our chat box is open for any kind of feedback that you want to present with. Thank you so much. Yes. I would like to take few of the questions which actually came on the Facebook. I could not actually reply to the Facebook viewers, so I take this opportunity to answer all those questions because I was on Zoom call, so I was taking all those questions. And thank you so much for all the appreciation you guys are rendering so far. First question I would like to take from a colleague. Family, work life and other voluntary commitments sometimes bring the stress. How to cope up with it? And taking painkillers to avoid headache, is it okay? See, these things goes on with your life. It's just how you prioritize and how you make your action plans. As I said before as well, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस मोमेंट पे ये कौन से काम करूँगा कि मुझे इस प्रॉब्लम से मैं इस काम से सुकून में आ जाऊँगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डेडलाइन 1 वीक में है कोई, तो उसको आप पहले कर लें प्रायोरिटाइज। और अगर आपको ऐसा लगता है मल्टीटास्कर नहीं है, तो आप अपने साथ कोई हेल्पर रख लें, ठीक है। आप अपने वर्क लाइफ को अपने घर के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस तरह से करें कि आप ओवर एग्जॉस्टेड ना हो जाएं, ओवर मल्टीटास्किंग ना लें अपने साथ। ऐसे काम करें कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी नीड है। और टेकिंग पेन किलर्स टू अवॉइड हेडेक इज़ फाइन, यू कैन टेक इट, इट्स ऑफ नो प्रॉब्लम। और एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज एक्चुअली बैड। आप रादर देन टेकिंग पेन किलर्स आप ये काम कर सकते हैं कि आप कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर लें, आप कोई मेडिटेशन कर लें, और अगर आप चाहते हैं तो आप कोई तस्बीह या कोई बंदगी या कोई अल्लाह के जिक्र में लग जाएं, ताकि आप उस रिलैक्सेशन के एक्सरसाइज से रिलीफ में आ जाएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर यू रादर देन टेकिंग अ लॉट ऑफ मेडिसिन। सो अनदर क्वेश्चन केम अप, how do we avoid or ignore negative people in our house? You cannot run away from your environment, but you can mold the environment. So there comes the other thing which I discussed is resilience. आप उस environment को adapt कर लें और अपने अच्छे विल से, अपनी अच्छी आदत से उसको जीत लें। ये आपके लिए एक, मैं कहूँगी एक तरह से आपके लिए मैं कहूँगी प्रेशियस एक जेम है। अगर आपने ये कर लिया तो आप अपनी लाइफ को जो है वो जीत लेंगे। तो उन लोगों को चेंज करने की जगह आप अपने आप को चेंज कर लें और ये देखें कि आपके कौन से ऐसे काम उनको खुश करते हैं, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ से आप जो है ना आगे लेके चलें चीज़ों को, तो आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, nail biting is a sign of stress. Yes, nail biting is definitely a very common sign of stress. When I was young, I used to do the same, but how to avoid such things? I would rather want you all to just focus on one thing. अगर आपको कभी भी स्ट्रेस आता है और आप कभी बाइट करते हैं नेल्स को, तो रिमेंबर आप ये चीज़ देखें कि आप रिलीफ कैसे कर सकते हैं। पहले तो ब्रीदिंग करें, अपनी एक डीप ब्रीथ लें, ब्रीद आउट करें, ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें, और फिर उसको फॉलोड बाय क्या करें, कोई चॉकलेट या ऐसी चीज़ ले लें जो आपके लोअर जो आपको हो रहा है बॉडी में, जो भी आपके प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, या आपको ऐसा लगता है आप बहुत लो हो रहे हैं, बीपी या शुगर आपका बहुत लो हो रहा है, तो उसको आप मोटिवेट कर दें अपने उस चॉकलेट, एक छोटे से चॉकलेट बार के साथ। तो ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम इन चीज़ों से बचाएंगी। नेल बाइटिंग ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है, तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। एंड our session has just done, but I would like to have queries and questions with you all. Afterwards, I can always reply to you all, and
I'm very much happy that you all are connected with my live sessions which are going on in the past and upcoming in the future. Inshallah, we'll be organizing more of it. But I really want you all to stay connected and stay tuned and stay home and stay safe. But just do not forget to practice your spiritual values, which is very crucial to relieve all of your mental illnesses. With that note, I would like to sign off. Take care. Allah Hafiz.